Hello student. In this session we have to start use of square root table. So this is very important table which we have to use while solving problems in an examination. Now this is square root table. You can see a square root table. The first column it start at 1.0 and end at 9.9. Means this is a two-page table again. This table is divided into four pages. First two pages is the square root of 1 to 10. And the next two pages means basically this is total 4-page table. So the first two is a square root of 1 to 10 and next is 11 to 99 means total 4-page table. Now in this first two it start at 1.0 and end at 9.9 and in next it start at 10 and end at 99. Here you can see a reciprocal, so square root of 10 to 100. Now let me use this table to find out square root of number. So we have to see some examples. So these are the example whose square root we have to find out. Now let's see the first example. The square root of first number means we have to find out square root of this number 1.265. So in this square root table, you can see this mean difference word. Below that mean difference, nothing is written. Means we have to add the mean difference here. Now we have to use this square root table. Now here 1.2 under 6 and 5 we have to add. So 1.2, you can see this is 1.2 under 6. So this is 6. Under 6, this is a number. And under 5. So under 5, this number is written. So in a line of 1.2 under 6, it is 1.123. And under 5, it is 2. So we have to add it 1.125. So here 1.125 is the square root. So 1.125 is the square root of this number. Now second example, square root of 1.826. And this square root we can find out by seeing in a line of 1.8 under 2 and under 6. So 1.8, you can see here 1.8 under 2, this number is written, and under 6, this number, sorry, not this 6. So mean difference 6 we have to see. So 1.8 under 2 and under 6. Under 6 a number 2 is written. Means here you can see 1.8 under 2. Under 2 it is written 1.349 and under 6 a 2 is there. So 1.351. So 1.351 is the square root of this number 1.351. तो ये इसका स्क्वायर रूट हो गया. तो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं. सिमिलर मैनर यहाँ पे दिया है 9.521. ये दिया है तीसरा नंबर, उसका भी देखते हैं. तीसरा है स्क्वायर रूट ऑफ 9.521. Again, in a line of 9.5 under 2 and mean difference 1 we have to add 9.5 under 2. You can see here under 2 it is written 3.085 and under 1 it is written 0. So no need to do anything. So here we get 3.085 is the square root of this number. If it is, listen, instead of that, let I tell you simple example here. One more example we see. So let I write here this example answer first. Fourth one. अगर ये नंबर ऐसे होता 9521, यहाँ पे पॉइंट होता है, तो सेम नंबर वी कैन राइट इट बाय शिफ्टिंग अ डेसिमल पॉइंट. ऐसे लिखते हैं 9.521 into 100. 100 इसका तो 9.521 का हमने यहाँ पे देखा था.
3.085 एंड 100 का तो 10 आता है, तो ये हो गया 30.85 इसका स्क्वायर रूट। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, 100 की जगह मैं ऐसे लिखता हूं 10⁻², 10⁻², 10⁻² ही क्यों? जब भी हम यहाँ पे डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो ये यहाँ पे जो पावर लिखेंगे 10 की वो इवन होनी चाहिए। तो 10⁻² जब बाहर आएगा तो 10 स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो 10⁻1 होगा, तो 10⁻1 यानी 10, तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। अगर यही एग्जाम्पल ऐसे होता 9,5,2,1, इसका स्क्वायर रूट देखना है, तो मैं कैसे लिखता? मैं ऐसे लिखता 95.21 इंटू 10⁻², एंड 95/21 देखते जो आगे वाले पेज पे है। देखिए ये जो टेबल है, यहाँ पे हमने 1 to 10 वाला डिस्प्ले किया है, उसके बाद 10 to 99 वाला आगे वाले पेज पे, तो आगे वाले पेज पे जाना है, 95 के लाइन में √2 एंड मीन डिफरेंस 1 ऐड करना है, जो भी आएगा, एंड 10⁻² जब स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो 10⁻1 होगा, एंड देन मल्टीप्लीकेशन करके आप स्क्वायर रूट इजीली निकाल सकते हैं। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं तो आपको और आइडिया आ जाएगी जो आगे वाले टेबल से रिलेटेड है, मींस 10 to 100 के बीच में। तो पहला एग्जांपल है, देखो 14.465, तो देखते हैं, ये हो गया 14.465। अभी इसका स्क्वायर रूट देखना है, आप देख सकते हैं इन लाइन ऑफ 14 अंडर, ये 14.0 है, तो 14 लाइन ऑफ 14 अंडर 4 एंड ये 65, तो राउंड अप करना है नंबर, तो 7 देखेंगे, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा इन लाइन ऑफ 14 अंडर 4, आप देख सकते हैं ये आ जाएगा नंबर 3.795, एंड अंडर 7 देखूंगा मैं मीन डिफरेंस, तो ये 9 आ जाएगा, तो 3.7 95 प्लस 9, तो ये आ जाएगा 804। तो इसका आंसर आ गया 3.804, तो यहाँ पे आंसर 3.804। सो दिस इज द आंसर। इसी तरह से आप आगे वाले नंबर का भी निकाल सकते हैं। देखते हैं आगे वाला भी कैसे निकालेंगे। सेकंड एग्जांपल इज, सेकंड एग्जांपल है स्क्वायर रूट ऑफ 9826। अभी देखिए यहाँ पे तो 98 दिख रहा है, तो इसे हम 98 पॉइंट समथिंग लिखेंगे, 98.26। डेसिमल पॉइंट मैंने लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट किया विद द 2 डिजिट, तो 10⁻2 आएगा। तो 98 के लाइन में अंडर 26 देखना है, 98 अंडर 2 ये लिखा है एंड ये 6 ये लिखा है, तो यहाँ पे 9.910 एंड यहाँ पे 3, सो 9.913, तो ये आ गया 9.913 इंटू 10⁻2, जब स्क्वायर रूट के बाहर आता है तो उससे आधा होता है, 2 के आधा 1, तो ये आंसर आ गया 99.13। दिस इज स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 99.13, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। उसी तरह से हमें तीसरा नंबर भी निकालना है। तीसरा है स्क्वायर रूट ऑफ 0.0097। उस नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4। अभी देखिए डेसिमल पॉइंट जब भी शिफ्ट करेंगे इवन डिजिट से शिफ्ट करना है, वी शिफ्ट लाइक दिस 97.0 लिखेंगे इंटू 10⁻1 2 3 4, 4 डिजिट से शिफ्ट किया 10⁻4 आ गया, तो 97.0, तो 97 अंडर 0 ये नंबर है 9.849, ठीक है, एंड 10⁻4 का 10⁻2 आएगा, तो ये हो गया इसका स्क्वायर रूट। सो 9.849 इंटू 10⁻2, ये 10⁻2 यानी 100, उसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सो 984.9, ये हो गया इसका स्क्वायर रूट।
तो इस तरह से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं बाय यूजिंग स्क्वायर रूट टेबल। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, बट द प्रोसीजर तो कॉमन है, आपको सिर्फ प्रोसीजर समझ में आनी चाहिए। So thank you for watching this video. If you really like this video, don't forget to press the like button, subscribe my channel, as well as press notification bell.